ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوشامدید کہتے ہیں۔ یہ وقت ان باتوں کا سوچنے کا نہیں ہے، آگے کے لیے لایا عمل طے کرنا ہے۔ آئل حیات، میری دشمنی تمہاری ماں سے تھی اور اس کا قصہ 10 سال قبل ختم ہو گیا، لیکن میری عزیزت جان بیٹی کو مجھ سے دور کرنے پر تم نے مجھے بھی اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ وہ حقارت سے بولی، ہمیں مل کر اس آئل حیات کو تباہ کرنا ہوگا، لگتا ہے پچھلا نقصان بھول گیا ہے، تبھی میدان میں اتر آیا ہے۔ زبیر ہنکار بھرتا ہوا بولا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی بھرپور انداز میں جوابی کارروائی کریں گے، وہ کھل کر لڑ رہا ہے تو ہم بھی منہ توڑ جواب دیں گے۔ ڈاکٹر قدسیہ چبا چبا کر بولی، میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، ابھی مجھے پریس کانفرنس کے لیے جانا ہے۔ لیکن کیا اس سے کوئی نفع ہوگا؟ ڈاکٹر قدسیہ نے اسے ٹوکا۔ کوئی خاطر خواہ نفع تو نہیں پہنچے گا، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ زبیر کہہ کر باہر نکل گیا۔ آئل حیات، تم نے پیٹھ پیچھے وار کر رہے ہو میرے، مجھے معلوم نہ ہو سکا عائزہ کو ہتھیار بنا کر اچھا نہیں کیا تم نے۔ وہ بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آہل دانی کے ہمراہ صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں پیڈ پکڑ رکھا تھا جس میں لائیو نیوز چل رہی تھی۔ میں آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے، مجھے بدنام کرنے کے لیے کیا ہے۔ آپ اس ایک ویڈیو کو دیکھ کر میری تمام شخصیت کو تباہ نہیں کر سکتے، اور سب سے بڑی بات، یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن سر، کون آپ کے خلاف اس طرح کے حملے کر رہا ہے؟ میں نہیں جانتا، یقیناً کوئی سیاسی پارٹی ہوگی جسے الیکشن ہارنے کا خدشہ ہوگا، تبھی ایسے ہوچے کنڈے استعمال کر رہے۔ لیکن سر، ویڈیو کو دیکھ کر معلوم تو نہیں ہوتا کہ یہ ایڈٹ کی گئی ہوگی۔ رپورٹر بول کر زبیر کو دیکھنے لگی۔ سر، اپنی بات پھر سے دہرائیں، عاصم نے عقم سے سرگوشی کی۔ آج کل اتنی صفائی سے یہ کام ہوتا ہے کہ دیکھیں، آپ جیسے رپورٹر بھی دھوکہ کھا گئے۔ میری ساخت تباہ کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں۔ زبیر کے الفاظ منہ میں تھے جب ایک ٹماٹر اس کے منہ پر آ کر لگا۔ وہ ششتر سا آگے جھانکنے لگا، لیکن نشانہ باز دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد انڈے اور ٹماٹر کی بارش ہو گئی۔ کوئی چھت سے یہ کام سر انجام دے رہا تھا۔ عاصم، دیکھو کون ہے یہ؟ زبیر کہتے ہوئے مڑ گئے۔ رپورٹر بھی حیران سے اس منظر کو دیکھ کر اور نظر بند کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ابھی ابھی زبیر رندھاوا کا ٹماٹر اور انڈے مارے گئے جب وہ اپنی پریس کانفرنس میں بات کر رہے تھے۔ عوام مشتعل ہے ان کی اس ویڈیو پر۔ کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ زبیر رندھاوا کا سریعام پھانسی دینے کا پروگرام بنایا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ رپورٹر بول رہا تھا، لیکن آہل نے بند کر دی نیوز۔ آہل ہنس رہا تھا۔ دانی کے دل میں زبیر کے لیے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ دیکھ رہی ہو؟ آہل اس کے شانے پر بازو رکھتا ہوا بولا۔ بالکل ایسا ہی انجام ہونا چاہیے ایسے لوگوں کا۔ دانی حقارت سے بولی، اس سے بھی زیادہ برا انجام ہوگا، تم دیکھنا۔ آہل اسکرین پر دیکھتا ہوا بولا۔ دانی نے سر آہل کے شانے پر رکھ دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ آہل فکر مندی سے گویا ہوا۔ ہاں، مجھے کیا ہونا؟ دانی سانس خارج کرتی ہوئی بولی۔ نفرت بھی تھی، لیکن تکلیف بھی اپنے باپ سے اسے ایسی توقع نہیں تھی، اور جب وہ امید ٹوٹتی ہے تو تکلیف بھی حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ پھر اس کا باپ تھا۔ کل یونی مت جانا تم دانی، آہل متفکر سا بولا۔ کیوں؟ دانی کو حیرت ہوئی۔ تمہاری یونی سے کچھ فاصلے پر جو گراؤنڈ ہے، وہاں عوامی تحریک کا جلسہ ہے، کوئی بدنظمی ہو سکتی ہے، تو مجھے لینے آ جانا۔ ویسے بھی پیپر ہے، جانا لازمی ہے۔ دانی کا سر ابھی تک آہل کے شانے پر تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود لینے آ جاؤں گا۔ آہل اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا، جو ہاتھ وہ دانی کے شانے پر رکھے ہوئے تھا۔ نیلا ہیرا جگمگا رہا تھا، یہ انگوٹھی دانی کے ہاتھ کی زینت بنی ہوئی تھی۔ دانی کا دھیان اس رنگ پر گیا تو دماغ میں چھماکا ہوا۔ آہل، مجھے جولر کے پاس جانا ہے۔ دانی سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ خیریت؟ آہل کی پیشانی پر لکیریں ابھری۔ مجھے تمہارے لیے رنگ لینی ہے، بالکل تمہارے ڈمپل جیسی گندی سی۔ آہل مسکراتا ہوا دانی کو دیکھنے لگا۔ دانی کی شہادت کی انگلی سے اس کے ڈمپل کو چھونے لگی۔ گندی سی لینی ہے تو پھر رہنے دو۔ آہل اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتا ہوا بولا۔ جی نہیں، مجھے لینی ہے۔ ٹھیک ہے، میں گھر بلا لوں گا جویلر کو۔ ہر چیز اٹھا کر گھر لے آؤ گے کیا؟ جیسے مجھے اٹھا کر لائے تھے؟ بالکل تمہارے لیے سب کچھ گھر میں آ سکتا ہے۔ ہاں، پتہ چلے کسی دن پورا ملک ہمارے گھر میں آ جائے۔ تم پورا ملک نہ منگوانا، مجھے میرا آہل مل گیا بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ دانی اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتی ہوئی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا گئی۔ اچھی بات ہے، آہل مسرور سا بولا، لیکن میں کبھی بھولوں گی نہیں تم نے مجھے گولی ماری تھی۔ دانی آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ وہ تو مجبوری میں ماری تھی نا، آہل معصومیت سے بولا۔ ہاں، تم پر کسی نے گن رکھی تھی نا مجبوری میں، دانی ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ میڈم، اگر میں گولی نہ مارتا تو آج تم میرے ساتھ نہ ہوتی۔ جو بھی ہو جائے، حیات نے مجھے گولی ماری، دیکھنا میں تمہارے بچوں کو بھی بتاؤں گی۔ دانی دھمکاتی ہوئی پیچھے ہو گئی۔ آہل لب دبائے مسکراتا ہوا آگے دیکھنے لگا۔ ہمارے بچوں کو کیوں؟ ان کو بھی تو معلوم ہونا کہ ان کا باپ کیسا ظالم انسان ہے، دانی ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ شوق سے بتانا، آہل اثر لیے بنا بولا۔ ڈھیٹ پن میں تو تم نے MBBS کیا ہوا ہے، دانی جل کر بولی۔ آہل مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اب کہاں کی تیاری ہے؟ آہل فون جیب میں ڈال رہا تھا جب عمیر کی کال آنے لگی۔ آہل کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ ہیلو عمیر، آہل بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ جناب کے مزاج ہی نہیں ملتے، دانی اسے باہر جاتا دیکھ کر بولی۔ بابا، آپ ماما کی کال کیوں نہیں لے رہے؟ عمیر سادگی سے بولا۔ بیٹا، میں بزی تھا۔ آہل چلتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ رفیق کی طرف آہل فون کان سے ہٹا کر بولا۔ ڈرائیور اس بات میں سر ہلاتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔
अभी भी मैं ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा आप नाराज़ हैं मामा से। नहीं बस बेटा, इतने काम होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। बाबा आप कब दोबारा आएँगे? वो उदासी से बोला। मैं कोशिश करूँगा आने की, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर रहा। आपने कहा था जल्दी आएँगे। उमैर मुझे बात करने दो बाबा से। ईमान की आवाज़ सुनाई दी। आहिल ने फ़ोन बंद कर दिया। मामा पहले मुझे बात करने दें, फिर। उमैर ईमान को देखता हुआ बोला। बाबा आप आ जाएँ। उमैर बोल रहा था, लेकिन दूसरी जानिब से मुकम्मल खामोशी थी। बाबा आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? मुझे दिखाओ। ईमान हाथ बढ़ाती हुई बोली। मुझे मालूम था बंद कर दिया होगा तुमने आहिल। ईमान नफी में सर हिलाती हुई बोली। बैटरी लो हो गई है फोन की, इसलिए बंद हो गया। ईमान इसे बहलाती हुई बोली। ओ अच्छा, फिर आप चार्जिंग पे लगा दे, मैं होमवर्क कर लेता हूँ। उमैर कहकर सोफे से उतर गया। जुबैर तैश के आलम में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। कोई फायदा नहीं हुआ। इस कमीने आहिल हयात के बायस मेरी शख्सियत मुतासिर हो रही है। आज लोगों ने मेरे मुंह पर, जुबैर रंधावा के मुंह पर, सबके सामने, जुबैर मुठियां भींचे खामोश हो गया। सर डॉक्टर कुत्सियाँ आई हैं। मुलाजिम सर झुकाए उनके सामने आता हुआ बोला। ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आता हूँ। जुबैर शीशे में बाल दिखता हुआ चलने लगा। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर। डॉक्टर कुत्सिया अफसोस से बोली। मेरे इल्म में आया है कि मीडिया तुम्हें सजा देने के लिए आवाज उठा रहा है। इदारे कब तक खामोश रहेंगे? वो फिक्रमंदी से बोली। इस आहिल हयात ने एकदम से सारी बाजी पलट दी। मुझे लगा था वो बच्चा है, क्या बिगाड़ सकता है मेरा? अब मालूम हुआ वो बच्चा क्या कर सकता है। डॉक्टर कुत्सिया ने उसे टोका। कुछ तो ऐसे भी नहीं रहने दूंगा इसे। इसकी जिंदगी दानीन के गिर्द घूमती है ना? इसकी जिंदगी ही छीन लूंगा मैं। जुबैर हकारत से बोले। क्या सोचा है तुमने इस बारे में? कल अवामी तहरीक का जलसा है, एक छोटा सा झटका अपने दामाद को दूंगा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? डॉक्टर कुत्सी आंखें छोटी किए बोली। ज्यादा नहीं, सिर्फ डर, वो भी थोड़ा सा। और अपने बारे में क्या ख्याल है? जेल जाने का इरादा है? मैं सोच रहा हूँ रूपोश हो जाऊं, क्योंकि इलेक्शन जीतना तो दरकनार, मुझे चंद वोट मिल जाएं वो भी गनीमत है। सानिया कहाँ है? डॉक्टर कुत्सिया ने मौजू बदला। वो सर्जरी के लिए गई है। क्या हुआ उसे? डॉक्टर कुत्सिया हैरत से गोया हुई। फिक्र मत करें, नाक की सर्जरी करवाने गई है। जुबैर सर झुकता हुआ बोला। ओ अच्छा अच्छा। डॉक्टर कुत्सिया इस बात में सर हिलाती हुई बोली। दानी की आंख खुली तो चेहरा मोड़े दानी दाएं जानिब देखने लगी आहिल को, जिसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। वो शायद सच में ही इतना मासूम था। वक्त बहुत जालिम चीज है, मासूमियत छीन कर तजर्बा दे देता है। आहिल की जिंदगी भी तजर्बे की नजर हुई थी। इस सब में तो वो बेकसूर मारा गया। सिर्फ वही नहीं, उसकी फैमिली भी। दानी की नजरें आहिल के चेहरे के गिर्द थी। दिमाग सोचों में उलझता जा रहा था। दिन ब दिन आहिल से मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा था। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। ये आपसे कुछ भी नहीं करवा सकती, और सब कुछ करवा भी सकती है। दानी भी हार जाती थी अपनी मोहब्बत के सामने। आयजा वाले वाक़े ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन आहिल को देखते ही उसका दिल सब कुछ फरामोश कर गया। न जाने कैसे नशा था इसके इश्क का, जो कुछ दिखाई ही नहीं देता था। दानी धीरे से मुस्कुरा दी। मेरा जाहिल हयात। दानी बोलती हुई उसकी जानिब झुकी। दिल शरारत पर मजबूर कर रहा था। आहिल के गर्म नर्म स्याह बाल उसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे। दानी आहिल की आदत को याद करती हुई मुस्कुराने लगी। तुम्हें मेरे बालों से हमेशा मसला होता है ना? दानी बेखबर आहिल से मुखातिब थी, जो गहरी नींद में था। दानी ने हाथ बढ़ाकर आहिल की पेशानी से बाल हटाए। आहिल ने झट से दानी का हाथ पकड़ लिया। दानी घबरा कर उसे देखने लगी। दिल की धड़कन मामूल से तेज हो गई थी। आहिल डर गया। डरा दिया मुझे? दानी खफगी से देखती हुई बोली। क्या कर रही थी तुम? आहिल दिलचस्पी से दानी को देखता हुआ बोला। कच्ची नींद में आहिल का जगमगाता हुआ चेहरा मजीद दिलकश दिखाई दे रहा था। इस पर इसका मुस्कुराना दानी को चारों शाने चित कर गया। मैं अपने क्यूट से हस्बैंड का मुआयना कर रही थी। दानी उसकी आंखों में झांकती हुई बोली। अच्छा, फिर क्या मिला आपको डॉक्टर साहिबा? मैं देख रही थी कहीं कोई खराबी तो नहीं पड़ गई तुम में? बस ये जो डिम्पल है ना, ये मुझे गिफ्ट कर दो। दानी इसके सीने पर बाजू रखे, इन पर अपना चेहरा रखे मुस्कुराती हुई बोली। मैं तो सारे का सारा ही तुम्हारा हूँ, जो लेना है बोलो, ले लो। आहिल जज्बात से चूर लहजे में बोला। अच्छा, फिर कुछ और इरशाद फरमाए। मैं अभी भी तकरीबन नींद में हूँ। आहिल जगमाई रुकता हुआ बोला। दानी आंखें छोटी किए उसे घूरने लगी। बहुत बदतमीज हो तुम वैसे। दानी कहती हुई उसके सीने से बाजू हटाकर बेड पर उतर गई। बहुत शुक्रिया मुझे आगाह करने के लिए। आहिल सीने पर हाथ रखता हुआ बोला। दानी बिना जवाब दिए अपने और आहिल के कपड़े निकालने लगी। दानी तैयार होकर सोफे पर बैठ गई। वो आहिल की मुंतजर थी। आहिल जानबूझकर देर कर रहा था। आहिल हयात, मुझे यूं नहीं जाना है। दानी उसके अकब में खड़ी होती हुई तब कर बोली। तो क्या हुआ? मुझे भी वजीर आजम से मुलाकात के लिए जाना है। आहिल महसूस होता हुआ बोला। तो क्या हुआ? मुझे भी वजीर आजम से मुलाकात के लिए जाना है। आहिल महसूस होता हुआ बोला। दानी ने उसकी बाजू पकड़ी और रुख अपनी जानिब मोड़ा। तुम वजीर आजम से मिलने जाओगे तो मुझे कौन लेने आएगा? दानी उदासी से बोली। मैंने सोचा ही नहीं। आहिल की पेशानी पर 3 लकीरें उभरी। दानी उसकी शर्ट के ऊपर वाले बटन बंद करने लगी। टाई भी पहना दो। आहिल को अच्छा लग रहा था दानी का इसके करीब रहना। 2 साल के बच्चे हो ना तुम, दानी खफगी से कहती मतलाशी निगाहों से बेड को देखने लगी। फिर टाई उठाकर लाई। अब अपनी गर्दन नीचे करो। दानी हाथ ऊपर करती हुई बोली। आहिल ने सर झुका लिया। दानी मसरूफ से अंदाज में टाई बांधने लगी। कितनी देर लगेगी? आहिल काफी देर बाद बोला। मुझे नहीं बांधनी आती, लो खुद बांध दो। दानी हाथ उठाती हुई बोली। फिर इतनी देर से क्या कर रही थी? आहिल डिम्पल की दीद करवाता हुआ बोला। मैंने सोचा कोशिश करने में हर्ज नहीं। दानी मुंह बसोरती हुई बोली। आहिल शीशे में देखता टाई बांधने लगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी फारिग हो जाऊं। अगर मुझे लेट हो गया तो तुम यूनी में ही रहना, मैं कॉल कर दूंगा।
आहिल दानी को देखता हिदायत बोल रहा था। दोनों गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी यूनी के बाहर खड़ी थी। ओके बॉस, दानी मुस्कुराकर बोली। आहिल धीरे से मुस्कुरा दिया। दोनों होने वाली अनहोनी से अनजान लम्हों का लुत्फ ले रहे थे। जाऊं मैं? दानी का हाथ आहिल के हाथ में था। वो ज्यादा तलब नजरों से आहिल को देख रही थी। मुझसे पूछोगी तो मैं तो तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। जाना भी कौन चाहता है? दानी उसकी स्याह गहरी आंखों में देखती हुई बोली। आहिल की आंखें समंदर जैसी गहरी थी, जिसकी गहराई को कोई नहीं माप सकता था। जितना नीचे जाते जाओगे उतना गहरा होता जाएगा, बस उतरते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। वजीर आजम से मेरी मासी मिलने जाएगी, दानी शरीर लहजे में बोली। जाओ, मुझे भी लेट हो रहा है। आहिल उसका हाथ छोड़ता हुआ बोला। दानी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। दानी चेहरा मोड़कर अकब में देखने लगी। वो आज भी देख नहीं रहा था उसे। बहुत जल्दी होती है ना तुम्हें? दानी उड़बड़ाती हुई गेट अबूर कर गई। अकब में गार्ड चल रहा था। आहिल हमेशा कुछ फासले पर गाड़ी रोक कर दानी को अंदर जाने देता था, और वो समझती थी कि उसे हमेशा जल्दी होती है। रहीम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। रहीम प्लीज आंखें खोलो। रहीम प्लीज, मेरी बात का जवाब दो। अनम का चेहरा पसीने से शराबोर था, आंखें बरस रही थी। अनम ने आंखें खोल दी। वो लंबे लंबे सांस लेती गिरदोपेश से निगाह दौड़ाने लगी। मैं तो अपने कमरे में हूँ। ओ ख्वाब था। एक आंसू टूटकर रुखसार पर गिरा। मैं क्या करूं? अनम ने थके थके अंदाज में चेहरा हाथों में गिरा लिया। ना मैं आगे जा सकती हूँ ना पीछे। तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ गए हो, जहाँ ना मंजिल दिखाई देती है ना रास्ता। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन इनका क्या? जो उनसे जुड़े होते हैं वो फिर ना जिंदा में शुमार होते हैं, ना ही मुर्दा में। अनम नफी में सर हिलाती कह रही थी। तुम्हें भूलना भी चाहती हूँ, लेकिन इस अजियतनाक दिन को याद भी नहीं रखना चाहती। दिमाग अपनी मर्जी चलाता है और दिल अपनी मर्जी। दोनों के बीच में मैं खत्म होती जा रही हूँ। ये दीमक ज़दा मोहब्बत मुझे अंदर ही अंदर खा रही है, खोखला कर रही है। ये रोज़ रोज़ की अजियत से तो एक ही बार की मौत मुझे अपनी आगोश में ले जाए, कम से कम सुकून तो मैसर होगा। वो खिड़की से बाहर के मनाजर देखने लगी। सूरज की किरणें अंदर कमरे में आ रही थी। काश इंसान के बस में ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा तो होता। किसी को खोना, फिर उसके बिना जीना, ये ख्याल ही सुहाने रूह है। तो फिर इससे गुजरने की तकलीफ तो कोई सोच भी नहीं सकता होगा। पल पल मरती हूँ जब ये ख्याल उद आता है कि रहीम कभी वापस नहीं आएगा। दिल आज भी यकीन करने पर राजी नहीं। शायद लोग इसी वजह से पागल हो जाते हैं। अधूरी मोहब्बत और अधूरी ख्वाहिशें जब दम तोड़ देती हैं, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। जिंदगी मेरे लिए क्या है? सिर्फ सांसों का खेल। जिस दिन ये खेल खत्म तमाम हुआ, उस दिन ये जिंदगी भी तमाम। बस इतनी सी बात है, और इंसान इतराता फिरता है, एक लम्हे का भी भरोसा नहीं। फिर भी अकड़ता है, सालों की प्लानिंग करता है, लेकिन वकूफ पजीर तो अल्लाह की प्लानिंग होती। हम क्या क्या सोच बैठते हैं, और जिंदगी सिर्फ एक लम्हा लेती है, सिर्फ एक लम्हा, और सब कुछ बदल जाता है। अनम इत्तेजाइया हंसती। ये दुनिया और इस दुनिया के खेल सब बेवकूफ़ हैं, इस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, जहाँ से एक सेकंड में चले जाना है, फिर सारा खेल, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जानी। अनम सर बेड की पुष्ट से टिका दिया। दिल बोझल सा था, लेकिन शायद अब कुछ सुकून था। दिल का गुबार निकल गया तो अनम भी खामोश हो गई, लेकिन आंसू खामोश नहीं थे। वो अपनी जुबान बोलते रहते जब तक तकलीफ खत्म नहीं होती। नाजरीन, आपको बताते चलें, जामिया यूनिवर्सिटी में आज खुदकुश धमाका हुआ। कुछ देर कबल तलबा और तलबात पर्चे हल करने में मसरूफ थे जब यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अभी हम आपको अंदर के मनाज़र दिखाएंगे। बहुत से स्टूडेंट जख्मी हैं और कुछ इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। सिक्योरिटी के बावजूद कोई स्टूडेंट अंदर बॉम्ब ले गया और ये एक खुदकश हमला है। बहुत से तलबात इससे मुतासिर हुए हैं। जामिया यूनिवर्सिटी, जहाँ तलबा मामूल के मुताबिक पेपर देने में मसरूफ थे, अचानक एक दिलसोज आवाज़ सुनाई दी और चारों समत धुआं, चीखों पुकार सुनाई देने लगी। ये आप देख सकते हैं मनाजिर, क्या हाल हो गया इस यूनिवर्सिटी का। खून के निशानात तो कहीं बैग रजिस्टर पर पड़े हैं। मजीद मालूम हुआ है कि धमाका एग्जामिनेशन हॉल में हुआ है, जहाँ तलबा अपना पर्चा हल करने में मसरूफ थे। सब मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे, इस बात से अनजान के कुछ देर में ऐसा वाक़या होने वाला है। आर्मी एहलकार पहुंच चुके हैं, जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आप टीवी स्क्रीन पर यह मनाजर देख सकते हैं। फौजी मदद के लिए आ चुके हैं और अब जख्मियों को और लाशों को बाहर ले जाया जा रहा है। इस धमाके का पस मंजर क्या हो सकता है, ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि जहाँ धमाका हुआ वहाँ सिर्फ तालिबात बैठे थे और हमला इतना अचानक हुआ कि किसी को मालूम नहीं हो सका। मजीद तफसीलात से आगाह करते चले साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ का इस सानिया को लेकर अफसोस का इजहार। इनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बात है कि आज हमारे तालीमी इदारे भी महफूज नहीं। ये तलबात पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। कल को मुल्क की बागडोर इन्हीं के हाथों में होगी। जिस किसी काम का भी ये है काम, वो पाकिस्तान की साख को तबाह करना चाहते हैं। तभी तो हमारे तलबात पर हमला किया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख करने की संगीन कोशिश की जा रही है। मजीद इनका कहना था कि निगरान हुकूमत इस बात का नोटिस ले, मालूम करे इसके पीछे किसका हाथ है। लवाहिकीन के अहले खाना से अफसोस का इजहार। जमात इस्लामी के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साने की मजम्मत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से नोटिस लेने का ऐलान। साबिका वज़ीर आला आहिल हयात का इस खाने को लेकर ट्वीट। इनका कहना है कि यह अफसोसनाक वाक़या है, एक लोगों में खौफ पैदा करने की सही, वाक़े की मजम्मत और निगरान हुकूमत के साथ तावन करने की यकीन दहानी। नाजरीन, हमेशा की तरह न्यू रहा आज भी सबसे आगे, सबसे पहले
हमले की तफसीलात से लेकर आज तक के अंदर तक के सब मनाजर सबसे पहले आपको आगाह किया है न्यू ने। मजीद तफसीलात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लम्हा ब लम्हा बाखबर रहें। मिलते हैं आपके साथ इस ब्रेक के बाद। आहिल को जैसे ही मालूम हुआ वो यूनी के लिए निकल गया। यूनी के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी, सब यहाँ वहाँ भाग रहे थे। रिपोर्टर अपनी कवरेज में महव थे। आर्मी एहलकार जख्मी तलबात को बाहर ला रहे थे। ये मंजर देखकर आहिल का दिमाग घूम गया। दानी, अल्लाह करे तुम ठीक हो, आहिल बोलता हुआ गाड़ी से निकला। सर, गार्ड्स आज के पीछे लपके। सर, आप अंदर नहीं जा सकते, आर्मी जवान ने आहिल को रोका। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? अंदर मेरी बीवी है और मैं अंदर नहीं जा सकता। आहिल उसे गिरबान से पकड़ता हुआ चिल्लाया। सॉरी सर, आप आए अंदर। कैप्टन सिकंदर आहिल को देखकर उसकी जानिब लपका। आहिल एक झटके से छोड़ता हुआ तेज तेज कदम उठाने लगा। साबका वजीर आला हैं वो, कैप्टन उसे घूरता हुआ बोला। फौजी एहलकार सटपटा गया। यूनिवर्सिटी की शक्ल बदल चुकी थी। एक तरफ मलबा गिरा हुआ था जिसके नीचे से आर्मी एहलकार तलबा को निकालने में मसरूफ थे। जगह जगह खून गिरा हुआ था। रजिस्टर, बैग, सब कुछ नीचे बिखरा पड़ा था। सफ़े उड़ रहे थे। आहिल बालों में हाथ फेरता आस पास देख रहा था। सर, आप हमें अपनी वाइफ की तस्वीर दिखाएं, हो सकता है इन्हें बाहर ले जाया जा चुका हो। कैप्टन सिकंदर उसके सामने आता हुआ बोला। 1 मिनट दिखाता हूँ। आहिल को देखकर मालूम नहीं हो रहा था कि साबिक वजीर आला है। इस वक्त वो एक खौफजदा सा इंसान लग रहा था, बिल्कुल आम सा, जो किसी को अपने को खोने के खौफ में गिरा हुआ था। चेहरे पर दुख और परेशानी के आसार थे, आंखों में फिक्र थी, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। न जाने किस्मत इन्हें आजमा रही थी या कोई दुख देने वाली थी। ये तस्वीर है, बताएं क्या आप इन्हें लेके गए हैं? कैप्टन गौर से तस्वीर को देखने लगा। नहीं सर, ऐसी किसी लड़की को नहीं लेकर गए हम, ध्यान से देखें या फिर किसी और से पूछें, हो सकता है कि आपने देखा ना हो। आहिल की जान मानो अब निकलती। सर, मैं गेट पर हूँ। जितने और तालिबात को ले जाया गया है मैंने चेक किया है, शायद वो अंदर ही हों, आए देखते हैं, वो आहिल के शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। आहिल का जब्त जवाब देता जा रहा था, दिल किसी अनहोनी की रदा सुना रहा था। आहिल मुश्किल आंसुओं को बहने से रोक रहा था, लेकिन ज्यादातर वो काविश इसमें नाकाम हो सकता था। आहिल कैफे में आ गया, लेकिन यहाँ भी दानी का नामो निशान नहीं था। कहाँ जा सकती है? आहिल पेशानी मसलता हुआ बोला। सर, ऐसा करें, आप वेट करें जब तक तमाम तलबात को निकाला नहीं जाता। ज्यादातर तलबात एग्जामिनेशन हॉल में थे और अभी भी वहाँ मौजूद कुछ तलबात हैं। आहिल ने तैश में उसका हाथ झटका। आपका मतलब है मैं अपनी बीवी की मौत की खबर सुनने का इंतजार करूं? आहिल उस पर बरस पड़ा। सर, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं भला? मेजर ने समझाना चाहा। बच्चा नहीं हूं मैं, और अभी के अभी मुझे मेरी बीवी मेरे सामने चाहिए, वरना। आहिल उसका गिरेबान पकड़ता हुआ बोला। सर, मैं समझ सकता हूँ, आप मुझे 5 मिनट दें, मैं कुछ करता हूँ। वो संभल कर बोला। 5 मिनट? इसके बाद तुम में से किसी को भी यहाँ मैं दिखाई ना दूं, मुझे कोई दिखाई ना देगा। आहिल इसे झटके से छोड़ता हुआ बोला। कैप्टन कॉलर दुरुस्त करता चल दिया। आहिल चेहरे पर हाथ रखे खुद को रोने से बाज रख रहा था। दानी, कहाँ चली गई हो तुम? मैं फिर से तुमसे गाफिल हो गया। आहिल के हाथ नम हो रहे थे। जुबैर टांग पर टांग चढ़ाए डॉक्टर कुदसिया के ड्राइंग रूम में बैठा ये मंजर देख रहा था। वैसे मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, एक की खातिर कितने लोग जान से गए। जुबैर स्क्रीन को देखते हुए बोले। अब इस सब का क्या फायदा? डॉक्टर कुदसिया तीखे तेवर लिए बोली। डर, जुबैर इन्हें देखता हुआ बोला। अब तो वो दानी को बिल्कुल भी निकलने नहीं देगा, अहमक। डॉक्टर कुदसिया को इसकी अकल पर शुबा हुआ। हो सकता है दानीन बेचारी भी इस हादसे की लपेट में आ गई हो। वो चेहरे पर मजलूमियत सजाए बोल रहे थे। डॉक्टर कुदसिया सर झटकती कॉफी पीने लगी। आयजा वापस नहीं आई? जुबैर ने मौजू तब्दील किया। नहीं, फोन भी बंद कर रखा है। बेवकूफ लड़की ने इस आहिल हयात की बातों में आकर डॉक्टर कुदसिया कोफत से बोली। तो आपने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की? जुबैर को हैरत हुई। कुत्तों की तरह मेरे आदमी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अल्लाह जाने कौन से बिल में छुपकर बैठी हुई है। मुझे तो दिन रात उसी की फिक्र खाई जा रही है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए उसके साथ। मुतफक्कर सी बोली। लाउंज में पड़ा फोन रिंग कर रहा था। मुलाजिम आस पास देखने लगा। ना सर है घर पर, ना ही मैडम। लैंडलाइन पर हम किसी का फोन उठाते हैं। कुछ सोचकर उसने फोन उठा लिया। जी कौन? ये आहिल हयात का नंबर है। मुकाबिल तेज तेज बोल रहा था। जी आप कौन? मुझे आहिल हयात से बात करनी है अभी, लेकिन सर तो घर पर नहीं है। आप दोबारा फोन कर लेना। ठीक है, मैं दोबारा फोन कर लूंगा, लेकिन तुम अपने सर को बता देना कि इनके लिए फोन आया था। और याद रहे, ये कहना मत भूलना कि निहायत अहम है इनके लिए जो बात मैं करना चाहता हूँ। जी सर, मैं कह दूंगा। दूसरी जाने से बिना कुछ कहे फोन बंद हो गया। वो शाने चुकाता हुआ अपने काम को चल दिया। शहर में जगह जगह नाकाबंदी लगा रखी थी। हसास इलाकों में आर्मी एहलकार तैनात थे। अनम शशतर सी इस न्यूज को देख रही थी। ये तो दानीन की यूनी है। वो मुंह पर हाथ रख के स्क्रीन को देख रही थी। ओह माय गॉड, दानीन को तो कुछ नहीं हो गया। अनम बोलती हुई नंबर डायल करने लगी। दानीन फोन उठाओ। बेल जा रही थी, लेकिन उसने अटेंड नहीं की। अनम कुछ सोचकर आहिल का नंबर मिलाने लगी, लेकिन वहां से भी नाकामी हुई। हाँ, रफीक का मिलाती हूँ। अनम फोन कान से लगाए मुंतजिर थी। स्पीकर पर रफीक की आवाज उभरी। हेलो रफीक, दानीन कहाँ है? मैं उसे फोन कर रही थी, वो ठीक है? अनम फिक्रमंदी से बोली। मैम, अभी तक दानीन मैडम का तो मालूम नहीं हो सका। मैं किसी काम के लिए शहर से दूर आया हूँ, सर ढूंढ रहे हैं उन्हें। अनम ने अच्छा कहकर फोन बंद कर दिया। अल्लाह करे दानीन ठीक हो। अनम के लबों से बेसाख्ता दुआ निकली। आहिल पागलों की तरह यूनी में घूम रहा था, लेकिन दानी का कुछ मालूम ना हो सका। वो चलता हुआ यूनी के अकबी हिस्से में आ गया। आहिल को गार्ड्स दिखाई दिया। आहिल लंबे लंबे डग भरता उस तक पहुंचा और उसे गिरेबान से पकड़ लिया। दानी कहाँ है? आहिल की आंखों में शोले भड़क रहे थे। सर, वो मैडम, उसने अपने अकब में इशारा किया। दानी मलबे पर बैठी पानी पी रही थी। दानी, आहिल ने उसे पुकारा।
आहिल की हालत ऐसी थी मानो किसी ने तपते सहरा में पानी की बूंद पिला दी हो, मानो रुका हुआ सांस बहाल हुआ हो। दानी चेहरा मोड़कर उसे देखती हुई खड़ी हो गई। नम आंखों से आहिल को देखती हुई वो उसकी जानिब आई और आहिल के सीने से लग गई। तुम इतनी देर से क्यों आए हो? दानी यश बहाती हुई बोली। दानी के आंसू आहिल की शर्ट में जज्ब हो रहे थे। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।